Hi guys, Assalamu alaikum. We will be learning clinical research in these free tutorials. Let's begin with introduction of clinical research. What is clinical research? Although there are many definitions available for clinical trials, it is considered to be the biomedical or health related research studies in human beings that follows predefined protocol. मतलब ये हुआ कि क्लिनिकल ट्रायल्स आमतौर पे बायोमेडिकल और हेल्थ रिलेटेड रिसर्च स्टडीज़ जो कि ह्यूमन बीइंग में की जाती हैं और जिसको प्री डिफाइंड प्रोटोकॉल पहले से मुतय्यन पहले से डिफाइन किया हुआ उसूल ज़ाब्ते पर रख के जो स्टडीज़ की जाती हैं ह्यूमन बीइंग्स में उसे क्लिनिकल ट्रायल्स कहते हैं. अनदर डेफिनेशन: clinical research is a research study carried out in human volunteers to answer specific health related queries. खास हेल्थ रिलेटेड क्वेरीज को आंसर करने के लिए ह्यूमन वॉलंटियर्स में जो स्टडी की जाती है, रिसर्च स्टडी की जाती है, उसे क्लिनिकल रिसर्च कहा जाता है. इंटेंशन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स इज टू टेस्ट द इफेक्ट ऑफ हेल्थ इंटरवेंशन ऑन ह्यूमन. Such health interventions are mostly new drugs or treatments, though clinical trials may also examine the effects of other health interventions such as diagnostic methods, surgical devices, etc. So, any investigation in human intended to discover or verify the effects of a drug and or to identify any adverse reactions to that investigational drug with the object of ascertaining its safety and efficacy. मतलब ये हुआ कि whenever you are doing some investigations on human and your intention is to discover or verify the effects of a drug, whether you want to discover the effect of drug or you want to verify the effect of drug on human being, or you want to identify any adverse reaction to that drug, so that after collecting the data you will ascertain the effect, ascertain the safety of that drug in human, and by doing this you will get, whenever you will submit this data you will prove that the drug is safe and effective, and by this you will get the approval from the government. Okay, go ahead and manufacture and market this drug. This is the intention. Then clinical trial is the most reliable, safest and fastest way of determining whether any new intervention is safe and effective or better than that is already existing. जैसा मैं कह चुका हूँ आपको कि क्लिनिकल ट्रायल का मकसद ये होता है, ये जानना होता है कि ये जो ट्रीटमेंट है ये सेफ है, इफ़ेक्टिव है, या ये पहले से मौजूद जो ड्रग है उससे ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करती है, उससे ज़्यादा सेफ़र है, उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है. और यही एक मोस्ट रिलायबल और सेफ और फास्टेस्ट वे है ये साबित करने के लिए. दूसरा और कोई शॉर्टकट नहीं है. क्लिनिकल ट्रायल्स यूजुअली ओनली बिगिन्स वंस प्रीक्लिनिकल लैबोरेटरी स्टडीज हैव ऑलरेडी शोन प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स. होता यह है कि फर्स्ट ड्रग डिस्कवरी होती है, ड्रग डिस्कवरी हुई, ड्रग डिस्कवरी के बाद प्री क्लिनिकल टेस्ट होते हैं. मतलब ये कि ये जो डिस्कवरी हुई है जो कि एक प्रॉमिसिंग कैंडिडेट होता है, उसको लैब में डिफरेंट सेल्स पे, डिफरेंट टिश्यूज़ पे, डिफरेंट डिवाइसेस पे, डिफरेंट एनिमल्स पे टेस्ट किया जाता है. और जब ये प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स दिखाता है और 99% ये पक्का होता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो सेफ़ है, ये प्रोडक्ट जो है वो इफ़ेक्ट्स दे रहा है, जो डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट्स हैं वो मिल रहे हैं, तब फिर ये सारा डेटा गवर्नमेंट को सबमिट किया जाता है और परमिशन ली जाती है कि सी वी आर नॉट गोइंग टू हार्म ह्यूमंस एंड वी वांट टू मार्केट एंड मैन्युफैक्चर दिस ड्रग प्रोडक्ट, बट गवर्नमेंट हैज़ अ रूल: prior to enter into the market you should prove your product on
few number of humans, and that has got a fixed rule. So this is called as a clinical trial. Your intention is to prove that my product is effective and my product is safe. I have tested this product on humans, and this is the data collected. Now give me the permission. This is the intention. In short, purpose of the clinical trials is much more than just trial, and this is one of the purpose of clinical trial. You want to get the permission from the government to manufacture and market this drug product. And another purpose of clinical trial is much more wider. Whether you can, whether you want to collect data to promote health, whether you want to collect data to protect health, whether you want to collect data to preserve health or to restore health, and by providing details about prevalence, causes, manifestation, diagnosis, treatment and preventive measure of diseases. मतलब ये हुआ कि इस तरह से जब आप किसी चीज़ को स्टडी करते हैं, तो स्टडी करने के लिए करने के बाद आप ये भी देख सकते हैं कि क्या कॉजेज थे इस बीमारी के, क्या कैसे मैनिफेस्ट हुई ये बीमारी, कैसे डायग्नोस की गई, क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल था, क्या और प्रिवेंटिव मेजर्स किए जाते हैं। तो सिर्फ ड्रग्स के ही लिए नहीं है, क्लिनिकल ट्रायल का बहुत वाइडर मीनिंग है। आप इसके कई टाइप्स हैं, वो हम आगे देखेंगे। और मेजर जो इसका सबसे बड़ा जो इंटेंशन है वो ये होता है कि किस तरह से इंसानियत को फ़ायदा पहुंचाया जाए। टाइप्स ऑफ क्लिनिकल रिसर्च कई टाइप्स हैं, कई सब टाइप्स हैं, जिसमें से कुछ ये हैं थेरापेटिक और नॉन थेरापेटिक टाइप ऑफ क्लिनिकल रिसर्च। थेरापेटिक मीन्स व्हेन योर इंटेंशन इज टू ट्रीट, then it will be a therapeutic clinical research. When your intention is not to treat, then it's non-therapeutic. Observational or experimental, just for observation or just to do an experiment. If you are conducting some study, it will be come into this category. Retrospective clinical trials means when you are going back to the history, something is already happened. For example, swine flu पहले ही हो चुका है, हुआ, उसके बाद कुछ पेशेंट सफ़र हुए, डेथ हुई, और अभी यू आर गोइंग बैक एंड यू आर स्टडिंग व्हाट वाज द रीज़न, व्हाट वाज द कॉज, व्हाट वाज द एज ग्रुप who suffered from this disease, in which area this type of diseases are happening, and now you are studying, collecting data, and it will be useful in future for the prevention, for the treatment of the disease. Cross-sectional or prospective. Cross-sectional means when different age groups you are involving in your studies, different races you are involving in your studies. Cross-sectional. Prospective means prior to happening. Retrospective when already things happened. Prospective when before that. Like अगर आप ये स्टडी कर रहे हैं कि डायबिटीज़ के लिए सबसे ज़्यादा कौन सा एज ग्रुप रिस्क में होता है, या कौन सी हैबिट्स जो हैं वो रिस्की फैक्टर है, और इस तरह से जो पहले आप स्टडी कर रहे हैं, कोई चीज़ होने के पहले आप स्टडी कर रहे हैं, कौन सी कॉजेज होती है, क्या मैनिफेस्टेशंस होते हैं। सिंगल सेंट्रिक क्लिनिकल रिसर्च, मल्टी सेंटर और मल्टी कंट्री। सिंगल सेंट्रिक क्लिनिकल रिसर्च, एज द नेम इंडिकेट्स, इज conducted in a single center, multi sectors and multi-country, you know. So phases of clinical research. Up till now what we have seen is definition of clinical research. Clinical research is a research study conducted on human beings to ascertain the safety and efficacy of intervention, right? Types: therapeutic, non-therapeutic, observational, experimental, retrospective, cross-sectional, prospective, single-centric, multi-sector or multi-country. Phases of clinical research. कौन से phases होते हैं clinical research के? phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. phase 1 also called as first in human, क्योंकि आप पहली बार प्री क्लिनिकल लैबोरेटरी टेस्ट ख़त्म हो चुकी है, पहली बार ह्यूमन में इंटर हो रहे हैं, उसे phase 1 कहते हैं। और उसकी कुछ फिक्स उसूल होते हैं, कुछ
रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करनी होती है, इसमें कितने नंबर ऑफ वॉलंटियर्स लगेंगे, कैसे लगेंगे, कैसे की जाएगी और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, देखा जाएगा आगे। यहाँ पे हम पहले फेजेस के नाम जान रहे हैं, कितने फेजेस होते हैं क्लिनिकल रिसर्च के। फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4। फेज़ 1 में हमने देखा फर्स्ट इन ह्यूमन। फेज़ 2 में ये होता है कि एडिशनल स्टडी, जब आप फेज़ 1 क्रॉस कर चुके हैं और फेज़ 1 में आप सक्सेसफुल रहे हैं, कोई मेजर एडवर्स इवेंट नहीं हुआ है, आपको परमिशन मिली है गवर्नमेंट से, ओके गो अहेड फॉर द फेज़ 2। In phase 2 you will be doing additional study of doses, drug safety and efficacy. Then after successfully completion of that phase you will get entry into phase 3 and you will be doing pre-marketing trial. Now you are almost done and you are preparing yourself to get into the market. Now you will be involving much more wider number of patients, much more number of patients, much more you will widen your research study. And in phase 4 you will be doing post marketing surveillance. आपने phase 1 किया, phase 2 किया, phase 3 में भी आपने साबित कर दिया कि आपकी जो ड्रग प्रोडक्ट है इट इज सेफ, इट इज इफेक्टिव, then you will submit all the data to the government after completion of phase 3 and you will get permission for manufacturing of this product and marketing in public. Again then it's compulsion that you conduct phase 4 of your study. Why is it necessary to do phase 4? Up till now your product is safe and you have proved that your product is effective and safe, then why do you need to study your product in the market? Because the reason is in phase 1, phase 2, phase 3 you had a fixed protocol, you had a fixed number of patients, you had a control, you had a selection in your hand. But in market you don't have control. Everybody and anybody can use your drug, whether he or she is suffering from any disease, whether he or she is taking any concomitant medicine along with this, and what is the atmosphere over there in that area, in that region, what are the eating habits of that region, and it is freely available in the market. Anybody can use that. So you still are conducting study, you still are monitoring the effects and safety of your drug product, whether in these circumstances your product is still safe and still effective, and you will be submitting this data to the government, right? What are the essentials of clinical trial? किस क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं? फर्स्ट, स्टडी डिज़ाइन, प्रोटोकॉल, एसओपी, लोकल रेगुलेशन, जीसीपी। स्टडी डिज़ाइन क्या होता है? स्टडी डिज़ाइन में स्टडी को पूरी तरह से डिज़ाइन किया जाता है, प्लान आउट किया जाता है, चॉक आउट किया जाता है, क्या क्या होंगी, किस तरह से होंगी और कैसे आपकी स्टडी ख़त्म की जाएगी। इसमें प्रोटोकॉल होते हैं, प्रोटोकॉल में डॉक्यूमेंटेशन होता है कि आप किन उसूलों पे किस तरह से कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके आप ये स्टडी कंडक्ट करने वाले हैं और किस रूल्स एंड रेगुलेशन को या किस टास्क को आप किस तरह से पूरा करने वाले हैं, एंड दैट विल बी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर. And along with this you will be following local regulation of that area. If you are conducting your research study in India, you will be following local guidelines, local regulation of Indian authority. If you are conducting your study in USA, you will be following guidelines of USA FDA, US Food and Drug Administration, right? So and along with these you must follow GCP guidelines. GCP is a good clinical practice. एक्चुअली GCP में गाइडलाइंस दी हुई हैं कि आपको किस तरह से कौन सा टास्क करना ही है
और कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हुए करना है। इसका ओरिजिन जो था वो डिक्लेरेशन ऑफ हेल्सिंकी है। डिक्लेरेशन ऑफ हेल्सिंकी में क्या डिक्लेयर किया गया ये हम बाद में देखेंगे। इसमें गाइडलाइंस बताई गई हैं कि किस तरह से क्लिनिकल रिसर्च स्टडी ह्यूमन बींग्स में की जानी चाहिए। उसी से एक्सट्रैक्ट करके कुछ गाइडलाइंस हर गवर्नमेंट ने अपने अपनी मुतय्यन की गई है, क्योंकि एरिया के हिसाब से कुछ चेंजेस करने ज़रूरी होते हैं। हर जगह का लिविंग स्टैंडर्ड अलग है, हर जगह की फूड हैबिट्स अलग है, इसलिए मकसद क्या होता है गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस का? मकसद होता है प्रिवेंशन ऑफ मिसकंडक्ट और फ्रॉड। इसीलिए ये गाइडलाइंस दी गई है कि आपको ये गाइडलाइंस ही फॉलो करने हैं। अगर आप वो प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं तो आप मिसकंडक्ट और फ्रॉड नहीं कर रहे हैं। सो good clinical practice guidelines include protection of human rights as a subject in clinical trial. It also provides assurance of the safety and efficacy of the newly developed compounds. Good clinical practice guidelines include standards on how clinical trials should be conducted, define the rules and responsibilities of clinical trial sponsors, clinical investigators, and monitors. In the pharmaceutical industry, monitors are often called clinical research associates. यहाँ इन सेंटेंसेस का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कि क्लिनिकल ट्रायल गाइडलाइंस जो बनाई गई है, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो गाइडलाइंस दी गई हैं, वो उसका मकसद ये है कि हर कोई किसी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता हो, हर कोई एक ज़ाब्ते के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करे और इसको मॉनिटर भी किया जाए। जब आप ये फॉलो कर रहे हैं तब आप मिसकंडक्ट या फ्रॉड नहीं कर रहे हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स और क्लिनिकल रिसर्च के लिए एक नाम और जानना ज़रूरी है, वह है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन में कुछ गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ जैसे यूएसएफडीए है, यूरोपियन कमीशन है, जापान है, इस तरह से कुछ गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ने बैठ के एक उसूल, एक ज़ाब्ता फिक्स किया है कि मकसद इसमें इसका यह है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं और जो रेगुलेटर्स हैं वो टेक्निकल डिस्कशन के लिए वो एक अपना काम आगे बढ़ाने के लिए एक प्लेटफॉर्म पे रहें, अलग अलग जुड़ के काम न करें, अलग अलग रह के काम न करें, एक साथ काम करें, सो डैट उनका कोऑर्डिनेशन बना रहे, उनका कम्युनिकेशन बना रहे और किसी भी तरीके से इंडस्ट्री लेवल पे या साइंटिस्ट के लेवल पे किसी तरह की इनह्यूमन एक्टिविटी ना हो, और जो डेटा दिया जाए वो सेफ हो, क्वालिटी ओरिएंटेड हो और इफिकेशियस हो। इसके मेंबर्स हैं यूरोपियन कमीशन, EFPIA, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज एज एसोसिएशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, लेबर एंड वेलफेयर, जापान, FDA एंड फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ अमेरिका। इंडिया में जो नेशनल अथॉरिटी है वो है CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी वेबसाइट आप देख सकते हैं cdsco.nic.in, और इसी के साथ आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में FDA-MAH.com। इसमें काफ़ी गाइडलाइंस दी हुई हैं कि किस तरह से रिसर्च की जाए और किस तरह से गाइडलाइंस फॉलो की जाए। स्पेशली इसमें शेड्यूल वाई ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स आप ज़रूर देखें और पढ़ें। क्लिनिकल रिसर्च के पार्टिसिपेंट्स कौन है? वो आर द पार्टिसिपेंट्स ऑफ क्लिनिकल रिसर्च, पेशेंट और वॉलंटियर, स्पॉन्सर, इन्वेस्टिगेटर और इंस्टीट्यूट, एथिक्स कमेटी, रेगुलेटर्स, क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी डिटेल्स हम देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, आई होप आप समझ रहे हैं, और इस पर भी आपके कुछ कमेंट्स हो या कोई सजेशन हो या आपको कुछ पूछना हो, फील फ्री टू मेल मी, आई विल आंसर और राइट सब कमेंट्स। थैंक यू।